पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी के सीईओ चंद्रशेखर अय्यर ने कहा कि आबी प्रोजेक्ट का तामीराती काम मतलूबा हदफ के मुताबिक मुकम्मल होगा। उन्होंने हुक्काम के साथ पोलावरम प्रोजेक्ट का दौरा किया, पोलावरम में जारी कामों का जायजा लिया, अफसरान से स्पिलवे के कामों की पेशरफ्त की तफसील हासिल की। The team from PPA along with me to understand the status of the various components of the project. For whatever we have seen on the spillway headworks, the work is going satisfactorily, and this spillway works and all would be completed as per the schedule what has been planned for the spillway works. Here for 4 days, and we will be going tomorrow to the LA and RR activities, tomorrow and day after West Godavari, East Godavari, and then we also will go to the LMC and RMC. So up to 23rd this team is here, and we will have a thorough inspection and visit of all the components. Along with me, Chief Engineer PIP Mr. Sudhakar Babuji is there, SC Mr. Nagireddy is there, and we are having a very good. आंध्र प्रदेश के वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पी नानी ने वाज़ेह किया कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर लोकल बॉडी इलेक्शन को रोका नहीं जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने 25 दिसंबर तक वैक्सीन रवाना करने का ऐलान किया था, लेकिन वैक्सीन की तकसीम में ताख़ीर का इम्कान है। उन्होंने बताया कि हुकूमत वैक्सीन की तकसीम के लिए तैयार है। పచ్చకామెర్ల వాడికి లోకం అంతా పచ్చగా ఉంటుంది. కోవిడ్ పేరుతో వాయిదా వేసినప్పుడు మనకు తప్పు కనపడింది. ఇవాళ వ్యాక్సిన్ల పేరుతో అని మనకి అంటే ఆయన ఏమనుకుంటాయంటే ఆ రోజు ఎవరి చేతో వంచబడి ప్రలోభాలకు గురి కాబడి ఈ రాష్ట్రం। कांग्रेस लीडर एन तुलसी रेड्डी ने कहा कि एपी में लोकल बॉडी इलेक्शन पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जारी रस्साकशी पर तनकीद की। उन्होंने आइन के मुताबिक मियाद खत्म होने के फौरी बाद इलेक्शन कराने की मांग की। It will be final. Whatever it may be, it is not at the discretion of the Chief Minister or government, and it is not at the discretion of the State Election Commissioner. It is as per Constitution. As per Article 243E, the elections to the local bodies should be completed before the expiration. जनसेना पार्टी ने 28 दिसंबर को एपी के तमाम अजला कलेक्टर्स पर एहतजाज करने का ऐलान किया। पार्टी के लीडर एन मनोहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। उन्होंने जगन हुकूमत पर किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया, रैतु भरोसा स्कीम पर अमल नहीं करने और साथ ही अवामी मसाइल को पसेपुश्त डालने का इल्ज़ाम लगाया। रियासती हुकूमत पर मरकज़ के फंड्स को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल न करने का भी इल्ज़ाम लगाया। తీవ్రంగా నష్టపోయారు। ఆ నష్టాన్ని పూడ్చడానికి కోసం మా వంతు మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। ప్రజలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నారు। రైతును ఆదుకోలేకపోతే చాలా దురదృష్టమైన పరిస్థితులు మన రాష్ట్రంలో ఏర్పడతాయి। దానికి బాధ్యత ఈ ముఖ్యమంత్రి। विजयवाड़ा में स्कूल रेगुलेटरी कमीशन का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में महकमे तालीम के हुक्काम, स्कूल्स के प्रिंसिपल, तलबा के सरपरस्त ने शिरकत की। नाडू नीडू प्रोग्राम की अमलावरी का जायज़ा लिया गया और मुस्तकबिल का लाहेमल पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि एपी हुकूमत महकमे तालीम में इस्लाहात ला रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स का ज़रिए तालीम इंग्लिश कर दिया गया है। नाडू नीडू प्रोग्राम के तहत स्कूल्स की इमारत और इंफ्रास्ट्रक्चर को कारपोरेट तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट हॉस्टल्स को भी शामिल किया गया। Reforms in education, especially in school education, we introduced English medium in all government schools, and also a prestigious Nadu Nedu program which is transforming these government schools into high level, that is a world level infrastructure installed in all government schools across the state, around 45,000 schools. In the first phase, we already closed 15,000 schools in the first phase of Nadu Nedu. Civil welfare hostels or social welfare hostels, all residential school hostels, KZBV hostels, everywhere we are doing Nadu Nedu. So today, on behalf of this commission, AP School Education Regulatory and Monitoring Commission, we had a stakeholders meeting of Nadu Nedu, second phase.
करनूल के रुकन असम्बली व लीडर YSRCP हफीज़ खान ने कहा कि करनूल को सियाती मकाम के तौर पर तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सियाहत के साथ शहर के मदाफाती इलाकों की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस मौके पर करनूल सिटी इंतजामिया के ओहदेदारों ने शहर के जोहरापुर से KCC कनाल विनायक घाट तक सियाती कश्ती का आगाज का जायजा लिया। करनूल में KC कैनाल जो ख़दीम कैनाल है शहर के बीचों बीच में से जा रहा है और तुंगभद्रा रिवर एंड हंद्री रिवर जो है लग के जा रही है। तो रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, टूरिज़म के लिए बोटिंग रखे तो बहुत अच्छा रहता बोलकर एक सोच के हम लोग जो है राइट नाउ KC कैनाल एंड तुंगभद्रा रिवर में बोटिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। टूरिज़म डिपार्टमेंट से एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल सीनिक एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता। उसी तरीके से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये भी जो है कर सकते हैं। अगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लेते हुए जाएंगे तो इसको डेवलप करेंगे बोलकर हम अभी सब डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करके पूरे प्रिकॉशंस के साथ, सेफ्टी के साथ जल्द से जल्द ये काम जो है। बीजेपी लीडर डॉक्टर पार्थसारथी ने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में बीजेपी मजबूत हो रही है। बीजेपी ने तेलंगाना में हुए हालिया इंतखाबात में शानदार मुजाहरा किया है। आंध्र प्रदेश के आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में भी पार्टी बेहतर मुजाहरा करेगी और AP में बीजेपी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। करनूल CPM के जिला सदर गौस देसाई ने बीजेपी पर इलाके रायलसीमा में अमन अमान के माहौल को खराब करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी के रियासती सदर सोमू वीरा राजू के करनूल दौरे के मौके पर इलाके रायलसीमा को गोद लेने की बात की है। उन्होंने सोमू वीरा राजू के रिमार्क्स पर एतराज़ किया। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर से पार्टी की जानिब से किए गए वादे को पूरा करके रायलसीमा को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा किया। रहने के बावजूद भी पिछले ज़िलों को नाइंसाफ़ी करते हुए फिर आके हम इंसाफ करते हैं, हम डेवलप करते हैं, शर्म आना उनको। ये आवाम को भड़काने के लिए, आवाम को दूसरे तरफ ले जाने के लिए आज बीजेपी ने ये ऐलान करती है। सही तरह रखने, सही रायलसीमा के ऊपर हमदर्दी रहे तो इमीडिएटली रायलसीमा डेवलपमेंट के लिए सेपरेट फंड लाने के लिए तुम्हारी सेंट्रल हुकूमत को दबाव करो। उसके साथ साथ कड़पा स्टील प्लांट तामीर करने के लिए, कड़पा स्टील प्लांट डेवलपमेंट करके उसमें 10,000 लोगों को रोज़गार देने के लिए आप कोशिश करते हो। जब शहबाज बोल के रायलसीमा वाले बोलते हैं, सिर्फ रायलसीमा का AP का सदर मकाम अमरावती को ही बरकरार रखने की मांग को लेकर अमरावती के 49 देहात के किसानों का एहतजाज जारी है। किसान एहतजाजी मकाम पर ही क्रिसमस तकारीब मना रहे हैं। किसान गुज़श्ता 1 साल से AP का सदर मकाम अमरावती को ही बनाने की मांग कर रहे हैं और रियासती हुकूमत से 3 सदर मकाम के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में बाप के आंखों के सामने 2 बच्चे हलाक हो गए। जिला मशरकी गोदावरी के तोनी में आज सुबह की अव्वलीन सातों में 2 व्हीलर को कंटेनर लारी ने टक्कर दे दी। 2 व्हीलर पर एक शख्स 2 बच्चों के साथ जा रहा था। इसी दौरान कंटेनर ने टक्कर दे दी। हादसे में मौके पर बाप की आंखों के सामने 2 बच्चे हलाक हो गए। लारी बच्चों के सरों को कुचल दिया। इन बच्चों की शनाख्त 10 साला दुर्गा और 15 साला ताताजी के तौर पर की गई है, जो विशाखापट्टनम जिले के कोटापुर पोटला इलाके के रहने वाले हैं। करिश्माती तौर पर इस हादसे में इन बच्चों का बाप महफूज रहा। लड़के की मुसलसल हिरासानी से तंग आकर एक 10वीं जमात की तालिबा ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया AP के जिला गुंटूर में पेश आया। जिले के कोरीपाड़ू इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा ने बताया कि मोहब्बत के नाम पर वरप्रसाद उसको हिरासा कर रहा था। लड़की को इसके वालिदैन ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस लड़की ने मौत से पहले दिए गए एक बयान में कहा कि वरप्रसाद की हिरासानी से ही इस इंतहाई इक़दाम की वजह है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और वरप्रसाद की तलाश शुरू कर दी, जो मफरूर बताया जाता है। इसी दौरान YSR कांग्रेस रुकन असम्बली श्रीदेवी ने लड़की के मकान पहुंचकर यकीन दिलाया कि मुलजिम को सजा दिलाई जाएगी। विशाखापट्टनम के नरसिम्हपेट में एंटी ड्रग्स रैली का इनकाद अमल में लाया गया। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। वाज़ेह है कि AP पुलिस की जानब से 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रियासत भर में एंटी ड्रग्स रैली का इनकाद अमल में लाया जा रहा है।
టౌన్ లిమిట్స్లో ఒక రన్ ఫర్ యూనిటీ జరిగింది ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ డ్రగ్. మీ అందరికీ తెలుసు ఏపీ పోలీస్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ డీజీపీ సార్ 15 డిసెంబర్ నుంచి 22 డిసెంబర్ వరకు మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఒక క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాము. దట్ క్యాంపెయిన్ ఇస్ ఫర్ స్ప్రెడింగ్ అవేర్నెస్ రిగార్డింగ్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఈ డ్రగ్ ఫైట్లో నాకు మన పోలీస్కి మంచిగా సపోర్ట్ చేయండి. ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి సో దట్ టుగెదర్ వీ కెన్ ఫైట్. रिटायर्ड सीआई अमीर बादशाह ने करनूल जिला इंतजामिया से जल्द अज जल्द गन लाइसेंस का रिन्यूअल करने की अपील की है. उन्होंने बताया कि वो 30 साल तक पुलिस डिपार्टमेंट की खिदमत अंजाम देते रहे. इसी दौरान वो कई मामलों को सुलझा चुके हैं. खुद की हिफाजत के लिए गन लाइसेंस रिन्यूअल होना लाजमी है. आपका फाइल नहीं आया, आपका पेपर नहीं आया, ऐसा बोल के मेरे को सफ़र करें इन लोग. सुपीरियर ऑफिसर से दरख्वास्त करता हूँ मेरा लाइसेंस मेहरबानी करके रिन्यूअल करो और मेरे जान मान प्राण की हिफाजत करो. 30 साल क्राइम में, 30 इयर्स क्राइम में बहुत से बस डकैटिस, हाउस डकैटिस, पेद्देटिगुल्ला गैंग्स, खंजरपट शिकारीस, हरुण शिकारीस. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आदाब. यहाँ पे वोटरान की कुल तादाद जो है वो 1779 है. अभी भी इनको सड़क, पानी और बिजली चाहिए. डीडीसी इलेक्शन की रिकॉर्ड कवरेज के बाद न्यूज 18 उर्दू पर तेज रफ्तार डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट लाइव. जम्मू कश्मीर के हर जिले में मौजूद हमारे नुमाइंदे देंगे आपको डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी पल पल की खबर मुसलसल. डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट लाइव देखिए बरोज मंगल 22 दिसंबर को